خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ عید کے 3 دنوں میں پنجاب بھر میں 6,294 ٹریفک حادثات رپورٹ ہوئے۔ لاہور میں سب سے زیادہ 1,082 حادثات پیش آئے۔ ٹریفک حادثات میں 32 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ عید کے 3 روز میں ٹریفک حادثات کی بھرمار، پنجاب بھر میں 6,294 حادثات رونما ہوئے۔ لاہور میں سب سے زیادہ ٹریفک حادثات ہوئے۔ ترجمان ریسکیو کے مطابق گزشتہ 3 روز میں ٹریفک حادثات کے دوران 32 افراد جاں بحق ہوئے۔ لاہور میں 1,082، فیصل آباد میں 405 حادثات پیش آئے۔ ملتان میں 382 اور گوجرانوالہ میں 347 ٹریفک حادثات رونما ہوئے۔ موٹر سائیکل سواروں کو 6,031 حادثات کا سامنا کرنا پڑا۔ رکشے کے 304 اور کار کے 704 ایکسیڈنٹ رپورٹ ہوئے۔ 5,609 مرد اور 1,735 خواتین حادثات کا شکار ہوئیں۔ 3,834 افراد کو موقع پر ہی ابتدائی طبی امداد فراہم کی گئی۔ سیکرٹری ایمرجنسی سروسز ڈاکٹر رضوان نصیر کا کہنا ہے، عید کے ایام میں ہزاروں موٹر بائیک ایکسیڈنٹ انتہائی خوفناک ہیں۔ والدین، اساتذہ، سول سوسائٹی اور تمام سٹیک ہولڈرز کو جنگی بنیادوں پر کام کرنا ہوگا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ زین علی، لاہور نیوز۔ لاہور آرٹس کونسل الحمرا کے زیر اہتمامی تقریبات ابھی جاری ہیں۔ ان سرگرمیوں میں بچوں کا ڈرامہ اینک والا جن، میجک اور پپٹ شو پیش کیے گئے ہیں۔ بچوں نے اپنے والدین کے ہمراہ پروگرامز میں بھی بھرپور شرکت کی ہے۔ عاطف پرویز کی یہ رپورٹ۔ عید کی لمبی چھٹیوں میں شہریوں نے جہاں پارکس میں موج مستی کی، وہیں الحمرا آرٹ کونسل کے زیر اہتمام خصوصی ڈرامہ اور میجک شو کا اہتمام کیا گیا، جس سے حاضرین خوب لطف اندوز ہوئے۔ نامور آرٹسٹ حسی پاشا المعروف ہامون جادوگر نے عوام اور الحمرا کے اس خوبصورت سنگم پر الحمرا انتظامیہ کی کاوشوں کو سراہا۔ گزشتہ 13 سال سے لاہور آرٹس کونسل الحمرا ہر اتوار کو 2 بجے بچوں کے لیے، فیملیز کے لیے ڈرامہ بالکل فری دکھاتی ہے۔ جو بھی آپ کے توسط سے سن رہے ہیں وہ ہر اتوار کو یہاں پر یہ ڈرامہ اینک والا جن آ کر دیکھ سکتے ہیں۔ زکوٹا جین کے بچے ہیں، کرنانی کے بچے ہیں، دیگر بھوت پری ہیں، سب بچے انجوائے کریں گے۔ الولو ہیلو، الولو ہیلو۔ الحمرا آرٹ کونسل میں بروز اتوار سے پہر 2 بجے بچوں کا ڈرامہ اینک والا جن اور دیگر پرفارمنس کا مظاہرہ ہوگا۔ عید کی لمبی چھٹیوں میں شہریوں کو تفریح کا موقع مل گیا۔ گریٹر اقبال پارک میں لوگوں کا رش برقرار، بچے بڑے سبھی پارک میں جھیل میں کشتی رانی سے خوب محظوظ ہوئے۔ عید تو ختم ہو گئی مگر شہریوں کی تفریح جاری ہے۔ عید کے دنوں میں لوگوں نے خوب سیر سپاٹے کیے اور ہلا گلا کیا۔ گریٹر اقبال پارک میں فیملیز پکنک منانے پہنچ گئیں۔ کشتی رانی لوگوں کی توجہ کی مرکز بن گئی۔ گریٹر اقبال پارک میں آئے سیاحوں نے کشتی رانی کا خوب لطف اٹھایا۔ کشتی رانی اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا نے سیر سپاٹے کا مزہ دوبالا کر دیا۔ شہریوں نے کہا کہ کشتی رانی کو بہت انجوائے کیا۔ بہت اچھا لگ رہا ہے اور موسم بھی اچھا ہے، خوشگوار موسم ہے اور انجوائے کر رہے ہیں۔ مینار پاکستان دیکھ لیا ہے، ابھی جائیں گے بادشاہی مسجد کی طرف اور وہاں پر بھی انجوائے کریں گے ہم۔ بچے کافی دیر سے ضد کر رہے تھے تو ان کو کہا ہوا تھا کہ چلو عید کی چھٹیوں میں چلیں گے، کبھی کہہ رہے تھے گرمیوں کی چھٹیوں میں چلیں گے، لیکن اب موسم اچھا ہے تو ہم نے کہا چلو پلان کر لیے۔ پھر ابھی تک مینار پاکستان دیکھا ہے اور کچھ پکس لیے ہیں پھولوں کے ساتھ، اب ادھر آئے ہیں۔ مینار پاکستان کے سائے میں بنی جھیل سیاحوں کو بڑی تفریح فراہم کر رہی ہے۔ خبر ہے کہ عید اپنے اختتام کو پہنچ گئی، لیکن بچوں کی موج مستی کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ باغ جناح میں بچے والدین کے ہمراہ پہنچ گئے، فیملیز کا رش لگا رہا۔ زین علی کی رپورٹ۔ عید کی تقریبات تو ختم ہو گئیں، لیکن تعطیلات کے باعث بچوں کی موج مستی کا سلسلہ ابھی ختم نہیں ہو سکا۔ بچوں کی کثیر تعداد والدین کے ہمراہ باغ جناح پہنچ گئی۔ کوئی جھولے لیتا رہا تو کوئی چٹ پٹی چیزیں کھانے میں مصروف۔ بچوں نے خوب عیدی اڑائی۔ بچوں کا کہنا تھا ہم نے سارے جھولے لیے، پارک میں کھیلا، بہت مزہ آیا، جبکہ والدین کا کہنا تھا کہ عید کے چوتھے روز بھی بچوں نے ضد لگائی تھی۔ بہت سارے جھولے لیے، بہت انجوائے کیا، اس پارک میں آ کے بہت مزہ آیا۔ عید کے چوتھے دن ہم گھومنے آئے تھے، سلائڈ لی اور پنک لی اور میرے پاپا نے بڑے جھولے لائے تھے۔ انجوائے بہت کیا ہے، جو ہے عیدیاں میں بہت ساری اکٹھی ہوئی ہے، ابھی ساری کھائی نہیں ہے، ابھی پڑی ہے۔ آج ہم نے بہت انجوائے کرا ہے، عید کے 3 دن بھی بہت انجوائے کرا ہے اور آج بھی ادھر انجوائے کرنے آئے ہوئے ہیں۔ بچے ابھی بھی ضد پہ ہیں مسلسل کہ بھئی ہمیں باہر لے کے جاؤ، ہم نے گھومنے جانا ہے، ہمیں پارکس میں لے کے جاؤ، ہمیں باہر پیزا کھانا ہے، باہر جانا ہے، تو مطلب ابھی بھی ان کی خوشی جو ہے وہ برقرار ہے۔ بچوں نے 3 دن جمع کی ہوئی عیدی چوتھے روز خوب اڑائی۔ میٹھی عید پر لاہور چڑیا گھر کی بندش نے بچوں کی عید پھیکی کر دی۔ بچوں سمیت فیملیز نے مایوسی کا اظہار کیا۔ دیگر شہروں سے آنے والے بھی چڑیا گھر کی بندش سے افسردہ نظر آئے۔
चिड़िया घर की बंदिश ने बच्चों की मीठी ईद को फीका कर दिया। ईद उल फितर पर सबसे बड़ी तफरीहगाह बंद होने से बच्चे मायूस, अपने पसंदीदा जानवर देखने से महरूम रहे। दीगर शहरों से आने वालों का भी कहना था कि चिड़िया घर की बंदिश से बच्चे मायूस और अफसुर्दा हैं। मुझे एलिगेटर पसंद है, तभी मैं आया था यहाँ पर ये तो बंद है। हम तो बहुत देर बाद चिड़ियाघर आए हैं तो हमें बहुत बुरा लग रहा है। बच्चे बड़ी दफ़ा हैं लेकिन एंजॉय करने के लिए हैं, लेकिन दफ्तर इस वक्त चिड़ियाघर बंद है, लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ जा रहे हैं हम वापसी, कि बच्चों को एंजॉय नहीं कर रहे हैं हम लोग, इसलिए हम वापसी जा रहे हैं। ग्यारह वाले से आए हैं। बच्चे बहुत जिद करते हैं कि हमें यहाँ लेके जाएं, हमने यहीं जाना है, तो अब ये काफ़ी देर से बंद है। अभी आए हैं, हमें तो पता भी नहीं था कि बंद है। निगरान हुकूमत ने नवंबर 2023 में मुरम्मत के बाद चिड़ियाघर को बंद किया था, जो अभी तक दोबारा नहीं खोला गया। लाहौर को पहली बार सस्टेनेबल स्मार्ट सिटी में तब्दील करने का फैसला वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने मंजूरी दे दी। लाहौर को स्मार्ट सिटी में तब्दील करने के लिए इब्तदाई तौर पर 6 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया। ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट। बढ़ती आबादी और फ़िज़ाई आलूदगी पर काबू पाने की कोशिशें, लाहौर को पहली बार सस्टेनेबल स्मार्ट सिटी में तब्दील करने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने LDA को स्मार्ट सिटी बनाने की असूली मंजूरी दे दी। लाहौर को स्मार्ट सिटी में तब्दील करने के लिए इब्तदाई तौर पर 6 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है। LDA की अपनी हाउसिंग स्कीमों में स्मार्ट सिटी मॉडल का आगाज किया जाएगा। लाहौर में मौजूद 100 से ज्यादा प्राइवेट स्कीमों को भी सस्टेनेबल मॉडल पर मुंतकिल किया जाएगा। जौहर टाउन, अल्लामा इकबाल टाउन और सब्जाजार को स्मार्ट सिटी प्लान के तहत तब्दील किया जाएगा। गुलबर्ग, MM आलम रोड और LDA एवेन्यू 1 में भी सस्टेनेबल स्मार्ट सिटी मॉडल लागू किया जाएगा। 6 स्कीमों में स्ट्रीट और रोड लाइट्स को सोलर पर मुंतकिल किया जाएगा। स्मार्ट सिटी में रेहड़ी बानों के लिए अलहदा बाजार, साइकिल और मोटर बाइक लेन, मरकजी तफरीही पार्क और सड़कों पर पैच वर्क भी किया जाएगा। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज। डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली एंथनी नवीद सहोत्रा कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी, मुल्क की तारीख में पहले कभी ये किसी मसीही को नहीं मिली। मेरे कायद बिलावल भुट्टो का कहना है कि मेरे हल्का NA 127 के लोगों को बताना है कि हम हारें या जीतें, हमें तुमसे प्यार है। हल्का NA 127 में उन्होंने इस हवाले से वाज़ेह तौर पर कहा कि सलीम के ज़ेर तमाम FGA चर्च और बहार कॉलोनी में इस हवाले से तकरीब हुई है। तकरीब से बतौर मेहमान खुसूसी खिताब करते हुए डिप्टी स्पीकर ने कहा कि पीपल्स पार्टी का बेकसों को ऐवान का कस्टोडियन बना देना ये ही नई सोच है। जब तक हम सब सियासी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम दुआ के सिवा कुछ नहीं कर सकेंगे। हमें अपने बच्चों को तालीम दिलवानी चाहिए और बतौर मसीही हमें सियासत को समझने की ज़रूरत है। 21 अप्रैल को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के लिए सियासी जमातों ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। इंतखाबी मुहिम भी सुस्त रवी से जारी है। पंजाब में ज़िमनी इंतखाब का महाज। कौमी असम्बली की 2 और सूबाई असम्बली की 12 सीटों पर हुकूमती इत्तेहाद और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल आमने सामने। NA 119 लाहौर से नून लीग के अली परवेज मलिक और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के शहजाद फारूक के दरमियान मुकाबला। NA 132 कसूर से नून लीग के रशीद अहमद और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर मद्दे मुकाबिल हैं। पंजाब असम्बली के 12 हलकों में ज़िमनी इंतखाब का मैदान लगेगा। PP 164 लाहौर से नून लीग के राशिद मिनहास, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के यूसुफ मियो आमने सामने। PP 158 से नून लीग के चौधरी नवाज लद्दड़ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चौधरी मोनस इलाही के दरमियान मुकाबला। PP 149 पर नून लीग की सीट एडजस्टमेंट IPP के शुएब सिद्दीकी, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हाफिज ज़ीशान रशीद मद्दे मुकाबिल हैं। PP 147 पर नून लीग के मलिक रियाज, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के शाहरुख जमाल भट्ट मैदान में हैं। PP 22 चकवाल में नून लीग के फलक शेर, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हकीम निसार मद्दे मुकाबिल होंगे। चौधरी परवेज इलाही एक बार फिर PP 32 से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के टिकट पर इंतखाबात लड़ रहे हैं। उनके मद्दे मुकाबिल मूसा इलाही हैं। PP 44 में नून लीग के अहमद इकबाल, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अवैस कासिम मद्दे मुकाबिल हैं। PP 139 से नून लीग के राना अफजाल, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के एजाज भट्टी मैदान में हैं। PP 290 में नून लीग के अली यूसुफ लगारी, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेहर सज्जाद हुसैन चीना के दरमियान मुकाबला है। PP 93 भक्कर से नून लीग के सईद अकबर नवानी, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सिकंदर खान मैदान में हैं। PP 36 वजीराबाद में नून लीग के अदनान अफजल चट्ठा, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के फयाज चट्ठा मद्दे मुकाबिल होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तलबा के लिए ईद का तोहफा 20,000 बाइक्स की फराहमी के मंसूबे का आगाज़ कर दिया गया। तलबा को बिलासूद बाइक्स की फराहमी के लिए
पंजाब हुकूमत 1 अरब रुपए सब्सिडी अदा करेगी। दरख्वास्त जमा कराने की आखिरी तारीख 29 अप्रैल है। हसन रजा की रिपोर्ट। पंजाब के तलबा के लिए बड़ी खुशखबरी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने तलबा और तालिबात के लिए 20,000 बाइक्स की फरहमी के प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया। तलबा को पेट्रोल और इलेक्ट्रिक बाइक्स की फरहमी के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी गई। पहले मरहले में 19,000 पेट्रोल और 1,000 ई बाइक्स दी जाएंगी। तलबा को बिलासूद बाइक्स की फरहमी के लिए पंजाब हुकूमत 1 अरब रुपए सब्सिडी अदा करेगी। 20,000 रुपए डाउन पेमेंट और माहाना इकसात पर मार्कअप भी हुकूमत देगी। तलबा 11,676 रुपए और तालिबात 7,325 रुपए माहाना इकसात जमा करा सकेंगे। पहले मरहले में लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर और रावलपिंडी में ई बाइक्स आबादी के तनासुब से दी जाएंगी। बाइक्स हासिल करने के लिए सरकारी या निजी यूनिवर्सिटी और ग्रेजुएट कॉलेज का तालिब इल्म होना जरूरी है। तलबा की उम्र 18 साल से जायद और ड्राइविंग लाइसेंस या लर्नर परमिट भी लाजिम है। बैसाखी मेले में शिरकत के लिए सिख यात्रियों की भारत से पाकिस्तान आमद। लाहौर के वाघा बॉर्डर पर सिख यात्रियों का भरपूर इस्तकबाल किया गया। बैसाखी मेले में शिरकत के लिए सिख यात्री भारत से पाकिस्तान पहुंच गए। वाघा बॉर्डर पर सिख यात्रियों का भरपूर इस्तकबाल किया गया। बैसाखी मेले की रौनकें देखने के साथ सिख यात्री गुरुद्वारा जन्म अस्थान ननकाना साहब, गुरुद्वारा सच्चा सौदा, गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर की यात्रा भी करेंगे। सिख यात्री गुरुद्वारा रोहड़ी साहब एमनाबाद, गुरुद्वारा श्री डेरा साहब लाहौर में माथा टेकेंगे। सिख यात्री मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए पुरजोश दिखाई दिए। उम्दा इंतजामात और गर्मजोशी से इस्तकबाल करने पर हुकूमत पाकिस्तान का भी शुक्रिया अदा किया। बैसाखी मेले की मरकजी तकरीब इतवार को गुरुद्वारा हसन अब्दाल पंजा साहब होगी, जबकि सिख यात्री 22 अप्रैल को वतन वापस रवाना होंगे। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ जैन अली, लाहौर न्यूज। ईद के बाद भी महंगाई की दुहाई कम न हुई। सब्ज मसाला जात, मौसमी सब्जियां और फल बदस्तूर महंगे। पोल्ट्री मसनूआत भी पहुंच से कोसों दूर हैं। मार्केट में सरकारी रेट लिस्ट के बरक्स अशिया की महंगे दामों फरोख्त का सिलसिला भी जारी है। ईद के बाद भी महंगाई का तूफान थम न सका। पोल्ट्री मसनूआत भी पहुंच से कोसों दूर हैं। ब्रायलर गोश्त 666 रुपए फी किलो है। मार्केट में मुर्गी का गोश्त 750 रुपए फी किलो तक बेचा जा रहा है। फार्मी अंडे 2 रुपए इजाफे से 252 रुपए फी दर्जन हो गए। ईद तातीलात के बाद सब्जी मंडियों में कारोबारी सरगर्मियों का आगाज। सब्ज मसाला जात, मौसमी सब्जियां और फल बदस्तूर पहुंच से दूर हैं। ओपन मार्केट में प्याज 280, टमाटर 200, लहसुन 750 रुपए फी किलो है। अदरक चाइना 700, सब्ज मिर्च 200, शिमला मिर्च 250 रुपए फी किलो बेची जा रही है। टींडे देसी 350, आलू 90, मेथी 60, करेले 250 रुपए फी किलो मिल रहे हैं। अरवी 250, मटर 120, घिया कद्दू 110 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। फलों में सेब काला कोल्हू 400, अमरूद 250, स्ट्रॉबेरी 200 रुपए फी किलो है। केले दर्जा अव्वल 250 रुपए फी दर्जन बेचे जा रहे हैं। खरीदार कहते हैं कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, मुनाफाखोरों को खुली छुट्टी दे दी गई है। तो ईद के बाद फिर भी वही हाल है, महंगाई वैसे ही है। अब बंदा गरीब बंदा तो नहीं ले सकता, ठीक है ना। अब यही है कि हमारे वज़ीर आज़म को चाहिए कि इन्हें सस्ता किया जाए। ये चंद दिन पहले मैं कराची तो पता किया सी ते ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਅਦਰਕ ਹੈਗਾ 400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ 'ਚ ਇੰਪੋਰਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ 700 ਰੁਪਏ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੀ ਭਾਅ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਜੇ। ईद तो बाद ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਟਮਾਟਰ ਹੈਗੇ ਸੀ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ईदों पहले तो हुण आज मिले ने 240 रुपये किलो। मार्केट में सरकारी रेट लिस्टों पर भी अमल दरामद न करवाया जा सका। इंतजामिया महंगाई के सामने बेबस है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज।